ਇਹ ਜੀ ਸਹਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆਏ हाँ ਨੇ। जी करन के पिंड ही है। ਇਹ ਕਰਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਬਰਕੀ ਢਿਆਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਗਾँव ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ हाँ ਦੀ जी ਗੱਲ ਹੈ। इस तरह पौधा ही महीना सी। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਏ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। डॉक्टर जवाब दे गए ही भी इन्हें नहीं बचना। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਟੀਕੇ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ हाँ जी ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਗਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। सार की अगे नालों बहुता कीता उन्हें इंशाल्लाह। ਦੁੱਧ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਢੁਕੀ ਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 12 10 12 ਗੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਵਾ। 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 10 12 ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਾਂ ਭੱਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗਾਉਂ ਵੇਖ। ਚੌ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਾਂ ਇਹ ਗਾਂ ਨੂੰ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10 12 ਗੜਵੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜਰ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਗੜਵੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਢੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 9 10 ਗੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੱਛੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਵੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਾਰ ਬਈ। ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੱਝ ਆਪਣੀ? 4 दिन तो बीमार है भाई। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪਹਿਲੇ 2 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं हम पहले, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ? और कोई खास फर्क नहीं था इसमें। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? रियाज साहब से हमने रब्ता किया है, वो हमारे साथ खड़े हैं अभी। ਮੱਝ ਪਹਿਲੇ ਜਗਾਲੀ करदी ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? नहीं पहले नहीं कर रही थी। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਗਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ट्रीटमेंट करने के बाद अभी की गाड़ी आधे घंटे के अंदर जी। कर दी है इसने। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। और मेरा तो वैसे नेट से चढ़िਆ आ गया तो ना ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਾਜ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਜੁਮੇ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੱਝ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੁਗਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। तो ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਿੰਗਰ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੋਵਾਮੈਨ कैल्शियम बाई अपना मेलफोन सी वगैरह नीरोसवास वगैरह और MBY काम वगैरह टीके पा के ड्रिप लाई। तो ये कोई ड्रिप लाई मेरा 10-15 मिनट ही 10 मिनट ही होए 10 मिनट ही हुए ने तो माशाल्लाह जुगाली करन लग पई मझ। अज चौथे दिन बाद कि पंजवें दिन बाद? चौथे दिन बाद अज मैं ने जुगाली का सार विखाया जी। पहले ने जुगाली का कोई के सार वगैरह नहीं चेक कराया, ना इन्हें ना पट्ठे खाते ना ही पट्ठे वगैरह ना चारे वगैरह खादा जी। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਸਰ 97 ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ 97 ਕੋਈ 3 ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये आज न्यू किस्म का केस है। ये इधर बरकी रोड पे ना कोरियाँ गाँव है, ये वहाँ पे हमने वहाँ पर जाकर ये भैंस का इलाज किया। ये 4 दिन से ये भैंस परेशान है, ये बीमार है। इसको क्या मसला हुआ था? इससे 4 दिन पहले इसको पेट में दर्द का मसला बना था। ये काफ़ी यानी कि पेट की दर्द की वजह से ये कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी, कभी लेट रही थी, और कभी ये भाई कह रहे थे कि अपना सर भी ज़मीन पर मार रही थी। तो हमने इधर मुतलका नज़दीकी डॉक्टर को बुलाकर इसका इलाज करवाया, लेकिन ये सूदमंद ना हुआ, इसकी तबीयत को बेहतरी ना आ सकी। लेकिन फिर एक दफ़ा यानी कि दोबारा अगले दिन फिर एक डॉक्टर को बुलाया। फिर उन्होंने आकर इसको लिक्विड पैराफिन के यानी कि 2 लीटर की यानी कि पिलाई दूध में मिलाकर, और साथ उन्होंने 5 का डिवर्मर भी दे दिया। और ये जब डिवर्मर और ये लिक्विड पैराफिन पिलाने के बाद भी ये भैंस की यानी कि कोई तबीयत बेहतर ना हो, लेकिन जो पेट में दर्द थी ये तो कुछ हद तक बेहतर हो गई थी। लेकिन ये चारा वगैरह जुगाली वगैरह ना खाने लगी और ये ज़्यादा ही एवरेज में बैठने लगी। तो जब हमें इन्होंने भाई ने कॉल की तो यार कहते हैं हमारी भैंस बड़ी कीमती है, ये भैंस काफ़ी हद तक बीमार है,
आप आएँ ज़रा इसका इलाज करें। तो हमने अगर जब चेक किया तो हमें पता चला कि ये इस भैंस को तो हाइपोमैग्नीसीमिया का मसला बना हुआ है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है और इसके साथ साथ कैल्शियम की भी कमी है और फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। तो ये तो ड्रिप का मसला था, ये तो आपने ये क्या मसला किया यार। तो हमने इसको रिंगर में 150 ml कैल्शियम की बोतल डाली, कैल्सीवेट हमने 150 ml डाली, नोवा में हमने 150 ml डाली, प्रीसाइनोफास हमने 20 ml दिया और इसके साथ साथ नीडोफास हमने 20 ml दिया और डेक्सामेथासोन हमने 15 ml दिया और अपना बी कम्प्लेक्स 20 ml दिया। यानी कि हमने न्यूट्रिशनल को यानी कि कमी को पूरा करने के लिए हमने विटामिन जो थे वो इसको मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए हमने मेडिसिन दी। तो ये जब ड्रिपल उतारी थी तो ड्रिप उतारते ही ये भैंस जो यानी कि जुगाली करने लग गई। ये देखे बड़ा कुदरत का ये करिश्मा है। ठीक 5 मिनट के अंदर ही ये जब हमने ड्रिप उतारी तो ये भैंस जुगाली करने लग गई। ये बहुत ज़्यादा मालिक ये खुश है और ये बहुत ज़्यादा यानी कि हमें दुआएं दे रहा है और हमें ये कह रहा है कि ये भैंस हमारी जो आपने अपनी अल्लाह की मदद से ये बचाई है। हम तो यही सोच रहे थे ये कि भैंस नहीं बचेगी। ये दोनों भाई बहुत खुश हैं। ये इनके अंकल हैं, अंकल से भी हमने बात की, वो भी कह रहे थे यार ये तो डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया था ये भैंस नहीं बच सकती, ये चारा भी नहीं खाती और ये जुगाली भी नहीं कर रही। ये 4 दिन से वो कोशिश कर रहे हैं, ये भैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतने हमने पैसे भी लगा दिए, इतनी फीसें भी भरी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस भैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने एक ही दिन में और एक ही वक्त में जब हमने ड्रिप उतारी तो उतारते ही ये भैंस चारा खाने लगी, क्योंकि हमने तशखीस कर ली थी ना। असल में डायग्नोज का सबसे बड़ा मसला है। अगर हम स्टोमक को यानी कि करते, हम ये जो मैग्नीशियम सल्फेट दे देते और साथ हम ये जो अपना लिक्विड पैराफिन और पेट के किरमों के लिए, तो ये देखिए पेट के किरमों का मसला हो तो दे। अगर पेट का किरमों का मसला नहीं है तो आप बिला वजह किरमों की दवाई भी पिला देंगे। अगर वक्त पर अगर दवाई ना पिलाएंगे, अगर वक्त का सही तकाजा ना करेंगे तो अक्सर जानवरों को डिवर्मी का जो केमिकल जो सिरप होता है ये जानवरों को उल्ट जिगर में इफ़ेक्ट कर सकता है, जानवर को जॉन्डिस का मसला पैदा कर सकता है, जरकान का मसला कर सकता है। क्योंकि ये जो डिवर्मिक होती है, पहले ऑलरेडी जानवर चारा नहीं खा रहा होता, चारा खाने के बावजूद पानी भी कम पी रहा होता है और अगर जानवर के जिस्म में डिवर्मिक की मिकदार को ज़्यादा मिकदार में भेज दिया जाए तो अक्सर जानवर में टॉक्सिन यानी कि पॉइजनिंग के जहरीले असरात फैलने का ख़तरा होता है। इसलिए आप कोशिश यही करें डिवर्मिक जो होती है वो वक्त के हिसाब से दे। अगर ये जानवर को डिवर्मिक का मसला है तो फिर आप डिवर्मिक का हिसाब लगाएं। अगर जिगरी किरमों का मसला है तो ऑक्सीक्लोरोनेट का यूज़ करें। अगर पेट या लॉन्ग्स या अपना नीमाटोड्स सिस्टोड्स का मसला है तो आप ऑक्साफेक्स एल्बेंडाजोल निटॉक्सल वगैरह का यूज़ कर लें और साथ यानी कि लिवर टॉनिक के लिए आप यूज़ करें हेपाबुवी। और इसके साथ साथ हम यानी कि डाइजेस्टिव को बेहतर करने के लिए दे सकते हैं। कोशिश ये करें कि जानवर की डायग्नोज करके जानवर का इलाज करें, जिससे जानवर को यानी कि एक ही खुराक में बेहतरी आ सकती है।